नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। I think having land and not ruining it is the most beautiful art that anybody could ever want to own. Hello students of class 10th, welcome to the world of English language. Let's begin this class. There is something in my hand. Can you see this? What is this? All of you can easily recognize this is money, Indian currency. अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका यूज क्या है, मैम आज इसे क्यों दिखा रही है? Tell me, what is the use of this money? You can buy almirah, you can buy car, you can buy toys, you can buy many luxurious things. Let me explain in a very different way. We can buy books with this money, but can we buy knowledge? No. Money can buy expensive watches, but it can't buy time. Money can buy medicine, but not health. We can buy a comfortable bed, but not sound sleep. We can buy luxurious things, but not happiness. We can buy a bigger house, but not home. Now you can see this picture. This is our home, our paternal home. A home belongs to our father, mother, family. We are here. We live here. We spend few times here. We are doing so many things. We spend our childhood there. और जिसके पास घर है वही है एक हैप्पी मैन। और आज की पोएम भी तो इसी पर बेस्ड है ना। पोएम है रिगार्डिंग अ हैप्पी मैन। सो पोएम है ओड ऑन सॉलिट्यूड अबाउट अ हैप्पी मैन। और आज हम इसी को अपने इस पोएम में पढ़ने जा रहे हैं। इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू रीड अ पोएम ओड ऑन सॉलिट्यूड written by Alexander Pope. We will read the poem, understand its concept and meaning together. ये पोएम आपके पैनोरामा टेक्स्ट बुक पार्ट 2 की सेकेंड पोएम है। सो पोएम पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं हमारा टारगेट लैंग्वेज। और आज का हमारा टारगेट लैंग्वेज है प्रीफिक्स एंड सफिक्स। बिफोर वी स्टार्ट अ पोएम, let's know some objectives of the poem Ode on Solitude. So what are the objectives? Objectives of the lesson. Learners will be able to read, comprehend and respond to the poem Ode on Solitude. Learners will be able to compare money and real pleasure of happiness. They will be able to differentiate prefix and suffix. Learners will be able to interpret and express various shades of meaning. Learners will be able to interpret and express various shades of meaning. Learner will be able to identify the rhyming scheme. पढ़ते हैं आज की पोएम। पोएम है ओड ऑन सॉलिट्यूड और इसके लिखने वाले हैं यानी पोएट हैं अलेक्जेंडर पोप। लेट्स नो अबाउट द पोएट Alexander Pope. He was born in
1688 and died in 1744. Alexander Pope was born in England. He was a critic but chiefly known as a satirist of the early 18th century. Satirist यानी सटायर जो व्यंग लिखता हो. His literary works are as follows: The Rape of the Lock, The Dunciad, The Epistles. He has written Ode on Solitude. This poem draws the picture of a happy man. Ode on Solitude. Happy the man whose wish and care a few paternal acres bond, content to breathe his native air in his own ground, whose herds with milk, whose fields with bread, whose flocks supply him with attire, whose trees in summer yield him shade, in winter fire. Blessed who can unconcernedly find hours, days and years slide soft away in health of body, peace of mind, quiet by day, sound sleep by night, study and ease, together mixed sweet recreation and innocence, which most does please with meditation. Thus let me leave unseen, unknown. Thus unlamented let me die, steal from the world, and not a stone tell where I lie. This is your poem, Ode on Solitude. Before we start a poem, let me tell you about ode. Ode क्या होता है? Ode एक ग्रीक वर्ड है और ये एक लिरिक पोएम को कहा जाता है जहाँ पे where you address a person or an object. So इसको हम एक बार definition में देख लेते हैं. Ode is a lyric poem addressed to a person or an object. The ode is a Greek word which means a choric song accompanied by dance. ठीक है, तो हमने जाना ओड किसे कहते हैं. एक और वर्ड है सॉलिट्यूड. सो इसको भी जान लेते हैं. सॉलिट्यूड मीन्स लोनलीनेस, अकेलापन. किसका लोनलीनेस? यहाँ पे आगे देखेंगे हम लोग अबाउट पोएट्स लोनलीनेस. क्या है हमारी लाइफ में और हमें क्या चाहिए, हमें क्या मिलता है, क्या नहीं मिलता है, हमें कैसी लाइफ चाहिए. याद है हमने मनी से हमने क्या खरीदा था? वही मनी कैन बाय बुक्स बट नॉट नॉलेज. मनी कैन बाय लग्जरियस थिंग्स बट नॉट हैप्पीनेस. सो यहाँ पे हम लोग इसी की रिगार्डिंग में ये पूरी पोएम को पढ़ेंगे. और हमने जब ये पोएम पढ़ा हमने बात की ओड की और सॉलिट्यूड की. सॉलिट्यूड मीन्स फिर से याद दिलाती हूँ लोनलीनेस. ठीक है, फिर अब पोएम पढ़ने से पहले चलो कुछ गेम खेलते हैं. मैं भी बोलती हूँ वर्ड और आप भी बोलेंगे वर्ड और मिलकर खेलते हैं गेम. बच्चों गेम तो सबको पसंद है. चलो मैं एक वर्ड बोलती हूँ और आपको इससे मिलता जुलता एक वर्ड बोलना है, मतलब एक राइम करना है. ठीक है, तो करें. मैं बोल रही हूँ वर्ड केयर, यू कैन टेल मी एयर. बाउंड, यू कैन टेल मी ग्राउंड. ब्रेड, शेड. अटायर और फायर. बच्चों मजाक मजाक में हमने तो खेल लिया और एक गेम और बना दिया राइमिंग स्कीम. इस गेम का नाम था राइमिंग टेनिस और हमने बहुत अच्छे से ये गेम खेला. बच्चों आपने भी बहुत कोऑपरेट किया. तो आपने समझा
इसका राइमिंग स्कीम क्या था? केयर एयर, बाउंड ग्राउंड, ब्रेड शेड, अटायर फायर. The rhyming scheme of this poem is AB, AB, CD, CD. बहुत हो गया खेल कूद, अब करते हैं कुछ पढ़ाई और हम पढ़ेंगे पोएम और उसका एक्सप्लेनेशन. ओके. हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर. सो ये पोएम है ऐसे इंसान की जो बहुत खुश है. हैप्पी द मैन हुज विश एंड केयर, यानी वो आदमी बहुत खुश है. अ फ्यू पैटर्नल एक्र्स बाउंड, यानी जिसके पास है पैटर्नल एक्र्स बाउंड मतलब लैंड प्रॉपर्टी. किनकी? फादर की प्रॉपर्टी, पैटर्नल प्रॉपर्टी जो आपके पूर्वजों की दी हुई है. कंटेंट टू ब्रेथ हिज नेटिव एयर, और वो कहाँ सांस लेता है? ब्रेथ, सांस लेता है. हिज नेटिव एयर मतलब वो जो आपकी धरती है, वो जो आपकी खुशबू है, वो मिट्टी की जो खुशबू आती है, जहाँ से आपको वो होम की फीलिंग्स आती है, जहाँ से आपके पेरेंट्स बिलोंग करते हैं, जो पैटर्नल लैंड है, उस एयर की, उस जगह की अगर आपको खुशबू मिल गई या जहाँ आप सांस लेने लगे, उस जगह पे जो लोग रहते हैं उन्हीं से रिलेट करेगा ये हैप्पी द मैन. सो एक आदमी खुश है. क्यों खुश है? क्योंकि उसके पास है पैटर्नल लैंड. वो सांस कहाँ ले रहा है? नेटिव एयर में. उसके पास है ओन ग्राउंड. सो एक इंसान की खुशी इन चीजों में पाई जाती है. पैटर्नल, फादर साइड की जो प्रॉपर्टी होती है उसको पैटर्नल बोलते हैं. आगे देखते हैं ओन ग्राउंड, जहां आप रहते हैं, जो लैंड है आपका, जो आपको आपके फोर फादर्स या एंसेस्टर्स की तरफ से मिला हुआ है, वो है आपका ओन ग्राउंड. सो इस पैसेज में पोएट ने उसी हैप्पीनेस की बात की है जो आपको लैंड से मिलता है, जो एंसेस्टर्स लैंड से मिलता है, जो आपके पैटर्नल लैंड से मिलता है. नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं. हुज हर्ट्स विद मिल्क. यहां पे देखोगे बच्चों एक कनेक्शन. हुज हर्ट्स विद मिल्क, हुज फील्ड्स विद ब्रेड. हर्ट्स का कनेक्शन मिल्क के साथ, फील्ड्स का कनेक्शन ब्रेड के साथ. हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विद अटायर. फ्लॉक्स का कनेक्शन अटायर के साथ. हुज ट्रीज इन समर yelled him shade, यानी ट्रीज का कनेक्शन समर में शेड के साथ. इन विंटर फायर, और विंटर में फायर के साथ, मतलब यही ट्री समर में शेड और विंटर में फायर. अब देख लेते हैं इस पॉइंट को. हुज हर्ट्स विद मिल्क, हमें मिल्क कौन प्रोवाइड करता है? मिल्क प्रोवाइड होता है हर्ट्स. हर्ट्स बोलते हैं जानवरों को, मवेशियों को. और यहां पे एक चीज और नोट करेंगे, एक वर्ड है मिल्च एनिमल्स. आगे हम इसको एमसीक्यू में देखेंगे. तो मिल्च एनिमल्स यानी जो चीजें दूध देती हैं. तो गांव में ये चीजें मिलेंगी, दूध देने वाली चीजें. सो उनसे हमें मिलता है मिल्क. हुज फील्ड्स विद ब्रेड, खेत खलियान जिनकी बात अभी हम कर रहे हैं, इनसे हमें क्या मिलता है? ब्रेड मिलता है, व्हीट मिलता है, राइस मिलता है. मतलब जो नेचुरल चीजें हैं, मिल्क, ब्रेड, ये सब हमें मिल रहा. कहां से? इन हिज ओन ग्राउंड, अपने ग्राउंड से. ठीक है. हुज फ्लॉक्स सप्लाई हिम विद अटायर. फ्लॉक्स बोलते हैं ग्रुप ऑफ शीप्स, जो जिनके खाल से या जिनके फर से हम कपड़े बनाते हैं. अटायर यानी क्लोथ्स. सो शीप से बनता है ना वूल, या उनसे जो हम रेशम का जो इंसेक्ट्स होता है उससे हम बनाते हैं रेशम, और फिर रेशम की साड़ियाँ, रेशम के कपड़े. सो वो भी तो हमें फ्लॉक से ही मिलता है. यानी जिन वैसे जानवर जो हमें वैसी चीज देते हैं जिनसे हम बनाते हैं क्लोथ्स यानी अटायर.
सो देखिए लाइन, whose flocks supply him with attire, यानी ये ऐसी चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं जिससे हम बनाते हैं कपड़े। तो 3 चीज हमने बताई, हर्ड्स मिल्क के लिए, फील्ड ब्रेड के लिए, और फ्लॉक्स अटायर के लिए यानी क्लोथ्स के लिए। क्लियर है आपको यहां तक? आगे पढ़ते हैं। Whose trees in summer, यानी ट्रीज, आपको याद होगा पिछली पोएम में भी हमने देखा था ट्रीज का क्या वैल्यू था और कैसे वो शेड्स दे रहा था पासर्स बाई को। यहाँ पे भी उसी शेड की बात हो रही है। Whose trees in summer, गर्मियों में जो yield him shade, जो छाया देता है, yield him मतलब देता है। तो गर्मियों में छाया देने का काम कौन करता है? तो ये पेड़, जिसमें आप आराम से कुछ समय बिता सकते हैं, वो चाहे वो गर्मी की धूप ही क्यों ना हो। और इसी ट्रीज को आगे देखेंगे, इन विंटर फायर, और ये गर्मी में ही नहीं जाड़े में भी बड़ी काम की चीज है। इनसे हमें मिलता है फायर, यानी वो जो लकड़ियां हम लोग जलाते हैं। तो ये जो लकड़ियां आप जलाते हैं वो पेड़ छाया भी देता है गर्मी में, और जाड़े में आपको उसके जो बचे हुए पत्ते, सूखे पत्ते, लकड़ियां, वो सब काम आ जाएंगी आपके जलाने में, और आप विंटर को भी इंजॉय कर पाएंगे। तो ये जितनी चीजें हैं, फिर हम यही बात बोलेंगे, ये कहाँ मिलेगा हमें? हमारी ओरिजिनल चीजें यहाँ मिलेंगी, जहाँ नेटिव वेयर की बात होगी, पैटर्नल लैंड की बात होगी, ग्राउंड की बात होगी। सो ये चीजें फिर हमें गांव में मिल जाएंगी। नेक्स्ट पैसेज में आते हैं, ब्लेस्ड। ब्लेस्ड यहाँ पे बच्चों बताया गया है ब्लेसिंग्स के लिए, यानी जो वर्ड है पोएटिक लैंग्वेज में ब्लेस्ड है, बट एक्चुअली द वर्ड इज ब्लेसिंग्स। ब्लेस्ड हु कैन अनकंसर्नली फाइंड। अब कंसर्न होता है किसी चीज में, बहुत ज्यादा आप कंसर्न दिखाते हैं, बहुत आपको उसको चीज को लेकर आप कॉन्शियस रहते हैं। यहाँ पे अनकंसर्न, आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अनकंसर्न रहिए। किस चीज के लिए रहिए? जब आपके पास ये चीजें हैं तो आप अनकंसर्न रहिए, मत सोचिए। क्या नहीं सोचेंगे? आवर्स, डेज एंड ईयर्स, ना आप अपने आवर्स को यानी घंटों को सोचिए, डेज दिनों को सोचिए, और ना ईयर्स उन सालों को सोचिए जो आप बिताना चाहते हैं या बिता चुके हैं। आवर्स, डेज एंड ईयर्स स्लाइड सॉफ्ट अवे, आराम से गुजर जाने वाले ये पल। स्लाइड सॉफ्ट अवे, इसको समझिए पहले। आराम से, स्लाइड यानी फिसल जाना किसी चीज में, कैसे? सॉफ्ट अवे, बहुत आराम से फिसल गया वो चीज। वो कौन सा चीज है? आपके आवर्स हैं, डेज हैं और ईयर्स। पता ही नहीं चल रहा समय कैसे बीत गया। हमने 20 साल वहां गुजार दिए, अच्छा कैसे? पता ही नहीं चला, क्योंकि वो तो हमारा अपना ग्राउंड था, ये था हमारा नेटिव वेयर। ओके, आगे देखते हैं बच्चों, इन हेल्थ ऑफ बॉडी। और जब इतनी चीजें आपने देख ली, आराम मिल गया, तो अब तो आपके शरीर में जाहिर सी बात है कि हेल्थ इज वेल्थ, तो शरीर में आ गई सेहत, और शरीर आपका हो गया स्वस्थ, यानी हेल्दी बॉडी की बात हो रही है। हेल्दी बॉडी भी आपको, क्योंकि आपके पास तो कुछ सोचने के लिए तो कुछ है ही नहीं, क्या टेंशन है? कोई वरीड नहीं है भाई, हमारा अपना ग्राउंड है, हमारा नेटिव एयर है, पैटर्नल लैंड मिला हुआ है, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो हैं हैप्पी मैन। सो हमारे लिए शरीर का स्वास्थ्य मिल गया हमें। दूसरा हमें क्या मिला? पीस ऑफ माइंड, यानी दिमाग की शांति। और ये जान लीजिए, कोई भी पैसा पीस ऑफ माइंड, हेल्थ ऑफ बॉडी नहीं खरीद सकता है। ध्यान रखना है, टेंशन हर एक चीज मिल जाएगी आपको, किसी भी चीज को करते हैं टेंशन होता है, लेकिन पीस ऑफ माइंड, अगर आप सुखी हैं, धनी हैं, वेल्थ है आपके पास। वेल्थ किस चीज का? पैसों का? नहीं नहीं, पैसों का नहीं, वेल्थ ग्राउंड का, वेल्थ लैंड का, वेल्थ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो इस यहां मिलेगी आपको पीस ऑफ माइंड। नेक्स्ट देखते हैं क्वाइट बाय डे। क्वाइट को देखते हैं, क्वाइट यानी साइलेंट, म्यूट, सारे दिन की शांति। और ये सारी चीजें हमें मिल रही हैं, जस्ट हमने आपको बताया, अपने लैंड से, यानी एक
सुखी आदमी वो है जिसके पास है अपना लैंड, और लैंड है तो ये सारी चीजें भी उसकी अपनी हैं। तो देख रहे हैं आप, हेल्थ ऑफ बॉडी, पीस ऑफ माइंड, क्वाइट बाय डे, सारे दिन की थकान भी ये निकाल रहा है। ये सारी चीजें आपके पास है, ट्री, आपके पास है हर्ड्स, फ्लॉक्स, फील्ड्स और पता नहीं क्या क्या। साउंड स्लीप बाय नाइट, क्वाइट बाय डे अगर है मीन्स साइलेंस है, अगर सारा दिन शांति है, सारा दिन बिल्कुल हम म्यूट है, हमें कोई टेंशन नहीं भाई, हमारा दिन तो बस कट जाना है, तो फिर आराम से सोने के लिए हमारी रात भी तो है। आओ बच्चों देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है। साउंड स्लीप बाय नाइट, अलेक्जेंडर पोप बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं कि जो रात हम सोते हैं हमारी कैसी रात है। सारा दिन काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, क्या रात में हम साउंड स्लीप ले सकते हैं? साउंड स्लीप, अच्छी नींद नहीं, हम बिल्कुल अच्छी नींद नहीं लेते हैं, क्योंकि पैसे का हमें टेंशन है, कल और कमाना है, कल क्या होगा। लेकिन यहाँ हम बहुत शांति से अपनी सारी रात एक साउंड स्लीप लेकर गुजार सकते हैं। स्टडी एंड ईज, अब यहाँ देखिए दो चीज को मिक्स किया गया है, स्टडी यानी पढ़ना और ईज यानी किसी भी चीज को आसानी से कर जाना, पढ़ने में भी आसानी और जिंदगी यानी लाइफ को जीने में भी जो इजीनेस है। टुगेदर मिक्स्ड, अब ये मिक्स्ड वर्ड क्या है? मिक्स्ड यानी मिक्सचर, मिक्सचर या किस चीज का मिक्सचर बात कर रहे हैं हम, देखो स्टडी एंड ईज का, स्टडी और ईज इन दोनों को हम मिक्स करते हैं यानी टुगेदर मिक्स, फिर क्या हो जाएगा? स्वीट रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट है, मतलब पढ़ो तो कोई टेंशन ना लो, पढ़ो बिल्कुल रिलैक्स वे में पढ़ो, इजीनेस होना चाहिए, मतलब पढ़ने में भी इजीनेस और जो आप अपनी लाइफ जी रहे हैं उसमें भी आपको इजीनेस फील होना चाहिए। लेकिन ये सब आएगा कहाँ से? ये तो ठीक है, हमने लैंड से, इससे जो भी चीजें अभी हमने पढ़ी उससे तो हमें शांति मिल गई और हमारा हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। लेकिन जब बात एंटरटेनमेंट की आती है तो हम देखते हैं कि पढ़ना, कुछ लोग सोचते हैं कि स्टडी इज डिफिकल्ट, लेकिन कुछ सोचते हैं नो स्टडी एंटरटेनमेंट है, एंजॉयमेंट है, हम कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, तो स्टोरी बुक के लिए आया ना इजीनेस, जिसमें फन होगा, क्रिएशन होगा और एक्टिविटीज हो जाएं तो आपको वो मजा भी मिलेगा। एंड इनोसेंस यानी स्वीट रिक्रिएशन एंड इनोसेंस, अब जब आसानी है कहीं पे सो बहुत सादगी भी है। सादगी किस चीज से मिलेगी? विच मोस्ट डज, ज्यादातर कैसे मिलती है? प्लीज विथ मेडिटेशन। मेडिटेशन किसको बोलते हैं? यानी कहीं पे चुपचाप ध्यान लगाकर बैठ गए, सो हमें उससे जो प्लीजीनेस है, जो प्लीजेंट मोमेंट मिलता है वो और किसी चीज से नहीं मिल सकता। मीन्स पढ़ने से रिक्रिएशन है, एंजॉयमेंट है, इजीनेस है, इनोसेंस है, सो जब मेडिटेशन है सो ये भी बहुत प्लीजिंग है। आपको शांति चाहिए, थोड़ा देर मेडिटेट कर लीजिए। कभी कभी हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, सो थोड़ा देर आदमी बोलता है रिलैक्स रिलैक्स, और वो जो 2 मिनट का रिलैक्सेशन है, वो जो मेडिटेशन है, वो हमें देता है, प्लीज करता है, यानी प्लीजेंट मोमेंट देता है ये हमें। तो चलो फिर अब पोएम का लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं। इस पोएम में अलेक्जेंडर पोप क्या कहना चाहते हैं? Thus let me live unseen, unknown। अब यहां देखिए वर्ड सीन से बना अनसीन और नोन से बना अननोन। इसकी भी एक एक्टिविटी हम लोग करेंगे, लेकिन अभी पहले हम लोग इस पैसेज को समझ लेते हैं। पोइट यहाँ खुद के बारे में कहते हैं, जो कि ओड ऑन सॉलिट्यूड ये पोएम पढ़ रहे हैं, पोइट के लोनलीनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। सो पोइट कैसे रहना चाहते हैं? ये रहना चाहते हैं अनसीन, जहां इन्हें कोई देख ना सके, अननोन, कोई इन्हें जान ना सके, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं बताना चाहते हैं, मुझे मत पहचानो, मैं कौन हूं। Thus unlamented let me die, और ये जैसे ये रहना चाहते हैं अनसीन अननोन,
उसी तरह से ये मरना भी चाहते हैं। कैसे मरना चाहते हैं ये? अनलैमेंटेड। अब अनलैमेंटेड कैसे होता है आगे देखिएगा। स्टील फ्रॉम द वर्ल्ड, यानी दुनिया से चुरा के, दुनिया को पता ही नहीं चले, स्टील मीन्स चुराना, दुनिया को पता ही नहीं चले कि ये जिसकी डेथ हुई है वो है कौन। एंड नॉट अ स्टोन, मतलब एक पत्थर भी नहीं होना चाहिए। टेल वेयर आई लाई, और यहाँ पे लाई का मतलब है टू बरी, यानी जहां पे वो डेड बॉडी को रखते हैं। सो पोएट ऐसी मौत चाहता है, इस तरह से मरना चाहता है कि लोग उसको पहचान न सके। मतलब जो स्टोन है जिसपे बर्थ डेट और पूरा एक डिटेल लिखा रहता था, हम लोग देख के ही बोल देते हैं कि अच्छा ये जो ग्रेव है वो किसकी है। पोएट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं मैं अनसीन रहूं, अननोन रहूं, अनलैमेंटेड रहूं, मतलब मेरी डेथ का भी किसी को पता ना चले, मतलब दुनिया बिल्कुल ना पहचान सके कि मैं हूं कौन, मैं था कौन, और ये जो अभी दुनिया से चला गया वो कौन है। तो ये है पूरी पोएम आपकी। सो द पोएट डजंट वांट टू हैव अ टॉम्बस्टोन इन हिज ग्रेव। पोएट चाहते हैं कि एक भी टॉम्बस्टोन जिसमें उनकी पूरी पहचान लिखी रहे वो ना हो। अब यही है इस पूरे पोएम का जिस्ट। अब पोएम तो लोनलीनेस पे है, सॉलिट्यूड पे है। सो द पोएट वांट्स टू लीव अ हैप्पी लाइफ। हैप्पी लाइफ कैसा? जिसमें सॉलिट्यूड भी है। ये हैप्पीनेस को ही यहाँ पे इंडिकेट करता है। ही डजंट वांट पीपल टू नो, टू बी सीन। सो यहाँ पे पोएट अपने आप को बिल्कुल अलूफ करके जीना चाहता है। नहीं मुझे इतनी पॉपुलैरिटी चाहिए, नहीं मुझे इतनी बहुत बड़ी पहचान चाहिए। सो इसी के बारे में ये पूरी पोएम थी। अभी जो हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया था अनसीन, अननोन, अनलैमेंटेड, सो ये वर्ड हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स कैसे हैं? सीन को अगर अपोजिट में हम बोलेंगे कि अपोजिट ऑफ सीन तो हो जाएगा अनसीन। नोन को अगर हम अपोजिट में बोलेंगे तो हो जाएगा अननोन। लैमेंटेड का अपोजिट हो जाएगा अनलैमेंटेड। तो इसी तरह से हम कुछ और प्रीफिक्स एंड सफिक्स को देख लेते हैं अपनी एक एक्टिविटी में, क्योंकि पोएम पढ़ने के बाद एक्टिविटी का मजा ही कुछ और है। तो करते हैं एक एक्टिविटी प्रीफिक्स एंड सफिक्स। हम बात कर रहे थे प्रीफिक्स और सफिक्स की। आइए जान लेते हैं कि प्रीफिक्स होता क्या है और सफिक्स कहते किसको हैं, और हम इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। प्रीफिक्स एडेड बिफोर, किसी भी वर्ड्स में पहले ऐड किए जाने पर वो प्रीफिक्स कहलाता है। हैज मीनिंग, इसका अलग एक मीनिंग भी होता है, आगे देखेंगे हम लोग इसको डिटेल में। और ये है सफिक्स, एडेड आफ्टर, मीन्स किसी चीज के या किसी भी वर्ड्स के बाद में यूज होता है। और अ सिलेबल का मतलब है ये एक सिलेबल है, इसका अपने आप में अलग से कोई मीनिंग नहीं है। मीन्स इट हैज अ मीनिंग एंड इट इज ओनली अ सिलेबल। देखिएगा वर्ड्स को, अन, डिस और इन, ये वर्ड्स से अगर हम कुछ बनाते हैं, कोई वर्ड्स बोलते हैं, तो एक नया वर्ड बन जाएगा। आगे हम लोग इसको देखेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। ly, लाई, tion, शन, er, अर, ये तीन किसी भी वर्ड के एंड में जाएगा। अब इसमें एक एक्टिविटी की तरह इसको हम लोग करते हैं। मैं बोलती हूँ एक वर्ड और आपको ये वर्ड से रिलेट करके बताना है कि वो वर्ड प्रीफिक्स है या सफिक्स है और उसमें कौन सा प्रीफिक्स लगेगा। मीन्स अगर मैं एक वर्ड आपको बोलती हूँ, सपोज मैं बोलती हूँ फेयर, सो फेयर कौन से वर्ड से लगेगा? फेयर प्रीफिक्स है कि सफिक्स? इसमें प्रीफिक्स लगाएं या सफिक्स लगाएं? देखिए वर्ड है आपका फेयर, सो अगर हम फेयर को अन के साथ लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? अनफेयर। तो ये हो गया ना अपोजिट वर्ड, फेयर, अनफेयर। कुछ और वर्ड्स को देखते हैं। मेरा वर्ड है एक्टिव,
एक्टिव कहाँ लगेगा? प्रीफिक्स में लगाएं या सफिक्स? एक्टिवली भी बोलते हैं, एक्टिवली, तो ये वर्ड यहां जाएगा, यानी ये है एक सफिक्स से रिलेट करता हुआ वर्ड। एक्टिवली पार्टिसिपेशन, एक्टिवली स्पीकिंग, कुछ भी ये वर्ड होता है जिसमें एल वाई यानी सफिक्स लगता है। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं करेक्ट। करेक्ट से क्या वर्ड बनाया जा सकता है? करेक्ट से बनाते हैं करेक्शन। हो गया एक डिफरेंट वर्ड, करेक्शन। नेक्स्ट है आपका वर्ड रिगार्ड। रिगार्ड से बनाते हैं एक वर्ड। रिगार्ड से क्या बन जाएगा? देखिए, रिगार्ड से बना डिसरिगार्ड, है ना एक अलग वर्ड। रिगार्ड का अपोजिट भी आप कह सकते हैं डिसरिगार्ड। अगर आप किसी को रिगार्ड दे रहे हैं तो रिगार्ड, और उसका अपोजिट मतलब रिगार्ड नहीं दे रहे हैं सो डिसरिगार्ड। ही इज डिसरिगार्डिंग मी। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं स्लो। स्लो कहाँ जाएगा? डिस स्लो तो नहीं बन सकता, अनस्लो भी नहीं हो सकता, कहाँ जाएगा ये स्लो? ये जाएगा स्लोली। देखिए स्लोली बन गया ना एक वर्ड, यानी ये अपने आप में एक वर्ड, ये सिर्फ सिलेबल की तरह काम कर रहा है। स्लो एक वर्ड है और एल वाई लगा यानी 2 सिलेबल है, स्लोली। तो यहां मैंने बोला था आपको एक सिलेबल है, तो सफिक्स हमेशा से एक सिलेबल की तरह काम करता है। नेक्स्ट वर्ड है प्लीजेंट। प्लीजेंट से एक वर्ड बनाइए, प्लीजेंटली। फिर एक वर्ड यहाँ पे बनेगा प्लीजेंटली, प्लीजेंटली। बन गया ना बच्चों ये वर्ड। इसको आप बहुत मजे से कर सकते हैं इसको, और पोएम में भी आपको बहुत सारी वर्ड्स मिल जाएंगे। अलग से भी आप एक्सरसाइज सेक्शन में जाइए और देखिए, वहाँ बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के वहाँ मिल जाएंगे और आपको मजा आएगा करने में। नेक्स्ट वर्ड है एजुकेट। अब एजुकेट वर्ड है, यानी एजुकेट वर्ड से बन जाएगा एजुकेशन। उसी तरह से एक वर्ड हम ले लेते हैं इन्फॉर्म। तो इन्फॉर्म, एजुकेट से एजुकेशन बन जाएगा। वर्ड लीजिए इन्फॉर्म। सो इन्फॉर्म से इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मर भी बन सकता है, इन्फॉर्मर, इंफॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड लेते हैं जो एंड करेगा सफिक्स से। सोचिए सोचिए वो कौन सी वर्ड होगी, और वो बिल्कुल आपके सामने है, पहचानिए। वो है टीचर। तो बना ना, टीच से टीचर, और ये है मैं आपके सामने हूं एज टीचर, मीन्स यहाँ पे ई आर सफिक्स का काम कर रहा है, जो एक सिलेबल की तरह। टीच और अलग सा कोई वर्ड नहीं है, मिलकर ही बनेगा टीचर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं ईट। ईट कहाँ लगाएंगे हम? याद कीजिए, ध्यान दीजिए, सफिक्स है या प्रीफिक्स? ईट में भी बन जाएगा ईटर। बनाते हैं ना वर्ड हम लोग, ईटर। नेक्स्ट वर्ड है चीट। चीट बनाइए, चीट भी आपका यही जाएगा, ई आर, चीटर। चीट से बनाते हैं वर्ड हम लोग, चीटर। नेक्स्ट एक वर्ड है आपका इन। इन से क्या क्या वर्ड बन सकता है ये आपको सोचना है। ये इन से बनाएंगे 2-4 वर्ड, मैं एग्जाम्पल 1-2 दे देती हूं, लेकिन ये बनाना है आपको। सो इन से एक वर्ड बनाइए इनएक्टिव। देखिए ये हो गया ना प्रीफिक्स, यानी प्रीफिक्स एडेड बिफोर, ये एडेड बिफोर वर्ड्स के पहले आता है। सफिक्स एडेड आफ्टर। ये देखिए वर्ड्स एक्टिवली, करेक्शन, टीचर, देख रहे हैं। सो ये रहा आपका प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सो हमने जान लिया पोएट के बारे में, और अब MCQ टाइम। सो यू विल हैव टू गिव करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, अलेक्जेंडर पोप वॉज बोर्न इन। ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, और करेक्ट आंसर है B, 1688। क्वेश्चन नंबर 2, अलेक्जेंडर पोप वॉज नोन एज। ये रहे आपके ऑप्शंस। सो अलेक्जेंडर पोप एक पोएट भी थे,
क्रिटिक भी थे और सैटरिस्ट भी थे। तो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 3, ओड इज अ कोरिक सॉन्ग एड्रेस्ड टू, ये रहे आपके 4 ऑप्शन। ओड इज अ कोरिक सॉन्ग एड्रेस्ड टू, ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। और सही आंसर है अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, यानी आंसर नंबर सी, बोथ ए एंड बी। ओड इज अ कोरिक सॉन्ग एड्रेस्ड टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट ग्लोरीफाइज, मीन्स द होल पोएम इज ऑल अबाउट, तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, एटीट्यूड, सॉलिट्यूड, मैग्नीट्यूड या नन। The whole poem is about solitude. So, correct answer है B. Next question देखते हैं। Happy the man who breathes in his dash air. तो ये रहे आपके 4 ऑप्शंस और करेक्ट आंसर है A, native. Happy the man who breathes in his native air. और ये रहा हमारा 6th क्वेश्चन। A happy man who has some acres of dash land. अपने पोएम में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? मैटरनल, पैटर्नल, बोथ ए एंड बी या नन? करेक्ट आंसर है पैटर्नल लैंड। A happy man who has some acres of paternal land. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7. The poet wants to leave. आपके ऑप्शन है अनसीन, अननोन, अनलैमेंटेड, बोथ ए एंड बी। सो द पोएट वॉन्ट्स टू लिव, अनसीन एंड अननोन। क्वेश्चन नंबर 8. द पोएट वॉन्ट्स टू डैश फ्रॉम द वर्ल्ड, और ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, स्टील। The poet wants to steal from the world. Let's move on. Here is question number 9. The poet wants to die dash. The poet wants to die. आपके 4 ऑप्शंस हैं, unseen, unknown, unlamented, none. Right answer is unlamented. The poet wants to die unlamented. और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। द पोएट विश्ड फॉर आफ्टर डेथ नॉट इवन अ डैश इरेक्टेड एट हिज ग्रेव, और ये रहे आपके 4 ऑप्शंस, पर्सन, स्टिक, ट्री, टॉमस्टोन। याद करते हैं वो पोएम और क्या था वो करेक्ट आंसर? टॉमस्टोन। वेरी नाइस, आपके करेक्ट आंसर है टॉमस्टोन। द पोएट विश्ड फॉर आफ्टर डेथ not even a tombstone erected at his grave. So ये रहा आपका होम असाइनमेंट। राइट अ पैराग्राफ ऑन हेल्थ इज वेल्थ। अब तो आपने ये पूरी पोएम पढ़ ली है और इस पोएम से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। सो एक शॉर्ट पैराग्राफ लिख लीजिएगा हेल्थ इज वेल्थ पर, और ये आपका होम असाइनमेंट भी हो जाएगा आज का। That is all from today's session. Students of class 10, enjoy this poem. Read again and again. Do well. Have a nice day. Thank you. कोरोना वायरस का खतरा होगा कम जब हाथों को बार बार धोएंगे हम। साथियों, जब आपके हाथ गंदे हों, खांसने और छींकने के बाद, किसी भी सतह या वस्तु को छूने के बाद, शौचालय के इस्तेमाल के बाद, खाना बनाने, परोसने, खाने से पहले और खाना खाने के बाद अपने हाथों को 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छी तरह धोएं। पानी को बर्बाद ना करें। हाथों को साबुन से मलते समय पानी का नल बंद रखें। हाथ धोते समय आप हाथ धोने के चरणों का पालन करें। पहले हथेली से हथेली, फिर हथेलियों के पीछे, अंगुलियों के बीच में, अंगुलियों के पीछे, अंगूठे के तले पर और आखिर में अंगुली के नाखूनों को अच्छी तरह धोएं। यदि किसी को खांसी,
बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हैं या अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल या सरकार के टोल फ्री नंबर 104 या 1075 पर संपर्क करें। बिहार सरकार और यूनिसेफ द्वारा जनहित में जारी। आज जब सूरज निकलता है तो देश में विकास के लिए हर दिन एक नया सवेरा लेकर आता है। दिन ब दिन भारत नई मंजिलों की तरफ अपने मजबूत कदम बढ़ा रहा है और विकास के इन बढ़ते कदमों के साथ एक चीज और है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और वो है विकास में देश के सभी वर्गों की भागीदारी। आजादी से पहले देश में आर्थिक आजादी की नींव तब पड़ी जब सन 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई। तभी से लेकर आज तक देश की आर्थिक व्यवस्था को सशक्त बनाना एवं उसके लाभ जनमानस तक पहुंचाना ही आरबीआई का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था तभी मजबूत होती है जब हर वर्ग विकास की राह पे कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और इसी विकास की गंगा को घर घर पहुंचाने के लिए वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आरबीआई ने भारत सरकार के साथ मिलकर कई क्रांतिकारी कदम उठाए ताकि बैंकिंग से वंचित रह गए जनमानस को मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और इनसे बहुत हद तक फायदा हुआ। लेकिन इन प्रयासों को वास्तव में गति तब मिली जब बैंकिंग के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उदय हुआ। आरबीआई ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से बैंकिंग सुविधा को बढ़ावा देने के लिए बीसी मॉडल की घोषणा की, जिससे कमर्शियल बैंक्स द्वारा दूर दराज क्षेत्रों में बिजनेस करेस्पॉन्डेंट नियुक्त किए गए और उससे जन्म हुआ कहीं भी कभी भी घर बैठे बैंकिंग का। इन बातों का असर कुछ यूं हुआ कि बैंकिंग पॉलिसी में एक मूलभूत तब्दीली आई। बैंकर्स का वित्तीय समावेशन को लेकर दृष्टिकोण बदला और उन्हें इसमें एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नजर आई। एक तरफ टेक्नोलॉजी की मजबूत बुनियाद पे सभी 6 लाख गांवों को फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ा जा रहा था। वहीं आर्थिक साक्षरता को बढ़ावा देते हुए गांव कस्बों में कैंप्स लगा कर लोगों को बेसिक बैंकिंग से जुड़ने पर होने वाले लाभों की जानकारी भी दी जा रही थी। बैंकिंग क्षेत्र में ग्राहकों की समस्याओं का भी पूरा ख्याल रखा गया और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गईं। वित्तीय समावेशन मुहिम के बुनियादी ढांचे की रूपरेखा भी वक्त के साथ और बेहतर होती गई। दशकों की मेहनत के चलते देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन का ढांचा अब एक विकसित रूप ले चुका था। वित्तीय समावेशन की कोशिशों को एक मजबूत साथ तब मिला जब देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 15 अगस्त 2014 के दिन देशवासियों के लिए एक अनमोल तोहफा पेश किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। भारत सरकार की इस लोकप्रिय योजना को संपूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि खाताधारी इन खातों का प्रयोग करे। खातों के प्रयोग से ही जहां गरीबों को सस्ती बैंकिंग सुविधाएं मिलेंगी, वहीं बैंकों की आमदनी भी बढ़ेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम और पीएमजेडीवाई को मिलाकर पिछले कुछ वर्षों में देश में 35 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए। अब ये हम सब की जिम्मेदारी है कि ये खाते न सिर्फ ऋण, जमा, पेंशन, इंश्योरेंस आदि प्राप्त करने का एक माध्यम बने, बल्कि खाताधारियों के लिए तमाम सरकारी सुविधाओं का द्वार खोलने का कार्य करें। हमारे नौजवानों में उसके हाथ में हुनर हो, काम करने का अवसर हो, तो एक आधुनिक हिंदुस्तान खड़ा करने की उसमें ताकत हो। सर, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए लोन ले रहा हूँ इस उम्मीद से कि मेरी स्किल मुझे कामयाबी दिलाएगी। क्यों नहीं, तुम्हारा खाता और तुम्हारा हुनर दोनों की कद्र होगी। लीजिए सर, मैसेज भी आ गया। बधाई हो। थैंक यू सर। हमारी कल और आज की कोशिशें रंग लाईं तो वाकई भारत का आने वाला कल बहुत सुनहरा होगा।
बहुत कुछ किया जा चुका है, बहुत कुछ करने की मंशा है। आइए सब मिलकर भारत को अधिक समृद्ध और विकसित बनाने की राह पर साथ चलें। करेंसी नोटों की ये कहानी, हाँ सुनो बंधुओं करेंसी नोटों की ये कहानी। हो कहाँ से आया, किसने बनाया, किसने सजाया, किसने छपाया, तुम्हारे कैसे आया, कैसे आया। जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, जो है सरकार का बैंक, जो है बैंकों का बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया, भारतीय रिजर्व बैंक कहलाया। मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। उन्हें मिली थी जिम्मेदारी मुद्रा स्थिर रखने की, सदा देश के हित में ही मुद्रा और ऋण के परिचालन की। प्रयत्न उनका रहता है विकास में सबको शामिल करना, उत्पादन गतिविधियों के लिए उन्मुख क्षेत्रों में ऋण प्रवाह हो निरंतर। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। वित्तीय स्थिरता कायम रखना ध्येय है ये उनका, आपकी पूंजी सुरक्षित रखना लक्ष्य है ये उनका। कीमतों को स्थिर रखने की हर कोशिश करते हैं वो, परिवार के भविष्य की खातिर निवेश कर सकते हो तुम, योजना बना सको तुम। सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं रिजर्व बैंक की यही कहानी। से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास है रहता उनका, वित्तीय समावेशन हो। बच्चों को वित्तीय रूप से जिम्मेदार बनाना यही प्रयास
प्रयास है रहता उनका वित्तीय समावेशन हो। देश के घर घर में न केवल बैंक का खाता खुले, किंतु खाते से जुड़ी वित्तीय सेवाएं मिले। पैसा भेजना, उधार लेना, सारी सुविधाएं मिले। विदेशी मुद्रा की जरूरतें पूरी कर सकते हैं। देश में बढ़े व्यापार और निवेश, दैनिक लेन देन के लिए कुशल व्यवस्था करना, यही है लक्ष्य उनका, यही है लक्ष्य उनका। सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी। ओ सुनो बंधुओं, रिजर्व बैंक की यही कहानी।